Good morning, everyone. This is your Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So, today in English grammar, we will do worksheet 7. So, before starting the work, first of all, what you all have to do, you all have to mention today's date in your copies, that is 27 July 2020. You all have to mention online classwork in your copies, and with that, you all have to mention today's lesson number and lesson name in your copies, and the lesson number is lesson 12 and the name of the lesson is the future tense. So these things are mandatory to mention in your copies before starting the work. So as you all know that before this lesson we have done lesson 10 and lesson 11. Lesson 10 was the present tense and lesson 11 was the past tense. So today lesson 12 is the future tense. We are learning all about tense only. So today, first of all, let's see the definitions of future tense. That is, it is used to talk about an action that will take place or is expected to take place in future. ये ऐसे एक्शन के बारे में बात करता है जो आपका फ्यूचर में होगा, और फ्यूचर में मीन्स जिसकी आशा है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फ्यूचर में आपका वो जो एक्शन है वो पूरा होगा. सो जो भी आपके भविष्य में होगा वो किसके अंडर आएगा? दैट विल कम अंडर फ्यूचर टेंस. सो टू अंडरस्टैंड इट बेटर, लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. फर्स्ट हियर इट इज़ रिटन, आई शैल पे फॉर माई फ्रेंड्स. मैं अपने दोस्त के लिए भुगतान करूँगा. पे मीन्स होता है भुगतान करना. सो शैल एंड विल इज़ द हेल्पिंग वर्ब ऑफ future indefinite tense, which I have already explained in the video which I have provided of the future tense. So you all have to see that video to understand the helping verbs and verbs. So first example I have explained, I shall pay for my friends. मैं अपने दोस्तों के लिए भुगतान करूँगा. Second is he will be preparing for the competition from tomorrow. वो कल से प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा होगा. So whatever will happen, that will happen in the future. That's why it is future tense. So our next definition is future indefinite tense, which is also called simple future tense. So let's see the definition of it. Here it is written, it is used for actions that will take place at some point in future. कैसे actions के बारे में बताता है, किन के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऐसे actions जो future में किसी point पर होंगे. मीन्स कल होगा, परसों होगा, बट होगा फ्यूचर में ही. ओके, इंडेफिनिट रहता है. कोई एक पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया होता. लाइक इट कैन बी बाई टुमारो, ओके, बाई आफ्टर टुमारो. सो दीज टाइप ऑफ टाइमिंग्स आर देयर, बट नॉट अ पर्टिकुलर टाइमिंग कि 3 से 4 बजे या इस टाइम में, ऐसा कुछ नहीं दिया होता है. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल. हेयर इट इज़ रिटन, वी शैल सेट आउट फॉर अ ट्रैक टुमारो. हम कल अपने ट्रैक के लिए निकल जाएंगे. सेट आउट मीन्स होता है निकल जाना, तैयार होकर. सो एंड ट्रैक इज़ एक प्रकार की जर्नी होती है जहाँ पर आप किसी ऊंचाई पर चढ़ते हैं. सेकेंड इज़ ही विल हेल्प यू इन ऑर्गेनाइजिंग द बर्थडे पार्टी. वो बर्थडे पार्टी यानी जन्मदिन की पार्टी आयोजित करने में तुम्हारी मदद करेगा. सो बाई शैल एंड विल वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, बिकॉज इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम विल एंड शैल लगाते हैं एज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, एंड देन हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रहता है. दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरीथिंग वेरी थॉरली in the video which I have provided, and I have already told you to watch that video to understand the tense better. Okay, let's see the next definition, that is of future continuous tense. As by the name it is clear, continue means होता है जारी रहना, and future means भविष्य. So whatever will be continue in your future, that will come under future continuous tense. जो भी भविष्य में जारी रहेगा means continue रहेगा, वो future continuous tense में आएगा. So let's see the definition. Here it is written, it is used for actions that will start in the future. ये ऐसे actions के बारे में बात करता है जो कब स्टार्ट होते हैं? फ्यूचर में होंगे स्टार्ट. एंड विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम, जो फ्यूचर में स्टार्ट होंगे और फ्यूचर में कुछ समय तक कंटिन्यू रहेंगे. मीन्स आप अपने भविष्य में स्टार्ट करोगे और कुछ समय उसे कंटिन्यू रखोगे, उसके बाद वो पूरा होगा. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. हियर इट इज़ रिटन, प्रीता विल बी स्टार्टिंग डांस क्लासेस फ्रॉम नेक्स्ट वीक. अगले हफ्ते से प्रीता जो है वो डांस क्लासेस स्टार्ट यानी शुरू कर रही होगी मीन्स अगले हफ्ते से करेगी और कुछ समय तक उसे कंटिन्यू करेगी. नेक्स्ट इज दे शैल बी पार्टिसिपेटिंग इन द टूर्नामेंट. वो टूर्नामेंट में प्रतिभाग कर रहे होंगे. ओके, सो वॉट एवर इज देयर दैट विल स्टार्ट इन फ्यूचर एंड विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम इन फ्यूचर. Clear? Next is future perfect tense. So let's see the definition. Here it is written, it is used to talk about an action that will start and be completed by or before a specific time in future. So future perfect tense किसके बारे में बात करता है? ऐसा action जो start तो आपका future में होगा लेकिन
उसके ख़त्म होने के लिए, उसके फिनिश होने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम दिया होगा, वो या तो उस पर्टिकुलर टाइम पर पूरा होगा या उस पर्टिकुलर टाइम से पहले भी पूरा हो सकता है. ओके, सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस टॉक्स अबाउट एन एक्शन दैट विल स्टार्ट इन फ्यूचर एंड बी फिनिश्ड बाय अ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर और बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर. वो एक दिए हुए समय में भी पूरा हो सकता है और एक दिए हुए समय से पहले भी पूरा हो सकता है. सो टू अंडरस्टैंड इट बेटर, लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. फर्स्ट एग्जाम्पल इज शी विल हैव गॉन बाई टुमारो. तो वो कल तक जा चुकी होगी. सो अ पर्टिकुलर टाइम इज गिवन कि वो कल तक ही जा चुकी होगी. सेकेंड इज दे विल हैव फिनिश्ड शॉपिंग बाई 3 AM. वो 3 बजे तक अपनी शॉपिंग पूरी कर चुके होंगे. सो व्हाट अ पर्टिकुलर टाइम कि 3 बजे तक. सो जो भी एक्शन होगा वो स्टार्ट फ्यूचर में होगा और एक पर्टिकुलर टाइम पर एंड हो जाएगा. दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस. Next is future perfect continuous tense. That is a mixture of perfect and continuous also. Okay. So let's see the definition. Here it is written, it refers to an action which will begin in future and will continue for a while till a given moment. So इसमें और continuous में difference क्या रहता है? Future continuous and future perfect continuous में future continuous में एक particular time नहीं दिया रखा होता है कि आपका action कब पूरा होगा. वो कुछ समय continue रहेगा और उसके बाद वो पूरा हो जाएगा. बट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एक ऐसे एक्शन के बारे में बात करता है जो आपका स्टार्ट होगा फ्यूचर में कुछ समय तक कंटिन्यू रहेगा और एक पर्टिकुलर टाइम दिया रहा होगा, उसी टाइम के बाद वो पूरा हो जाएगा. ओके, फ्यूचर में ही स्टार्ट होगा, कुछ समय कंटिन्यू रहेगा और एक गिवन टाइम में, गिवन मोमेंट में वो पूरा हो जाएगा. सो टू अंडरस्टैंड इट बेटर, लेट्स सी द एग्जाम्पल. हियर इट इज़ रिटन, आई शैल हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 2 years बाय द एंड ऑफ 2022. सो 2022 तक मैं क्या कर चुका हूँगा, मैं इंग्लिश की पढ़ाई 2 साल तक कर चुका हूँगा. मीन्स मैं स्टार्ट करूँगा 2 साल के लिए पढ़ाई और एक पर्टिकुलर टाइम दे रखा है, 2 साल तक वो कंटिन्यू रहेगी एंड आफ्टर 2 years दैट विल बी कंप्लीटेड. सेकेंड इज बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर. इस समय अगले साल तक मृदुल विल हैव बीन प्लेइंग प्रोफेशनल फुटबॉल. सो इस समय अगले साल तक, इसी समय में मृदुल जो है वो प्रोफेशनल फुटबॉल खेल चुका होगा. सो मीन्स आपका फ्यूचर में स्टार्ट होगा, कंटिन्यू रहेगा और एक पर्टिकुलर टाइम पर उसका एंड हो जाएगा. सो दैट वर द डेफिनेशंस दैट ऑफ फ्यूचर टेंस. सो लेट्स सी द एक्सरसाइज. फर्स्ट एक्सरसाइज इज fill in the blanks with simple future and future perfect tense of the given verbs. The verbs are given, so you have to fill the blanks with simple future, that is also called future indefinite, and future perfect tense. First it is written, hopefully the train dash soon. So हमारा क्या रहेगा, सिंपल फ्यूचर आएगा, विल अराइव सून, बिकॉज एक पर्टिकुलर टाइम नहीं दे रखा है और फ्यूचर परफेक्ट में एक पर्टिकुलर टाइम दे रखा होता है जब आपका एक्शन पूरा होता है. सो मैं आशा करता हूँ जो ट्रेन है वो आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी. सेकेंड इज यू डैश ऑल द पेंडिंग पेमेंट्स बाय फ्राइडे. हेयर अ पर्टिकुलर टाइम इज बीइंग गिवन, फ्राइडे तक. सो हमारा क्या रहेगा, ये परफेक्ट टेंस रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. यू विल हैव रिसीव्ड ऑल द पेंडिंग पेमेंट्स बाय फ्राइडे. तो तुम्हारा जितना भी पेंडिंग भुगतान है वो तुम्हें फ्राइडे तक मिल जाएगा. ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस? सो द डिफरेंस इज दैट कि यहाँ कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं दे रखा है, यहाँ लिखा है सून, जल्द ही होगा, एंड हेयर अ पर्टिकुलर टाइम हैज़ बीन गिवन कि जो पेमेंट है वो तुमको फ्राइडे तक मिल चुका होगा. ओके. थर्ड इज शी डैश इफ़ शी नेग्लेक्ट्स हर हेल्थ. वो अगर अपनी हेल्थ, अपने स्वास्थ्य को अनदेखा करेगी तो वो सफ़र करेगी, शी विल सफ़र. यहाँ कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया है, दैट्स वाई हमने इसे सिंपल फ्यूचर से फिल किया. दैट इज़ शी विल सफ़र इफ़ शी नेग्लेक्ट्स हर हेल्थ. अगर वो अपने हेल्थ को अनदेखा करेगी, अपने स्वास्थ्य को, तो वो सफ़र करेगी, मीन्स परेशान होगी. फोर्थ इज शी डैश अ स्वेटर फॉर ईच ऑफ हर ग्रैंड चिल्ड्रन बाय द एंड ऑफ दिस विंटर. अब यहाँ एक पर्टिकुलर टाइम दे रखा है कि विंटर के एंड तक, सर्दियों के अंत तक, वो अपने हर ग्रैंड चिल्ड्रन, हर पोती या पोते के लिए एक स्वेटर बुन चुकी होगी. सो दैट्स वाई हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लगाया है, दैट इज विल हैव निटेड. वर्ब हमारा ऑलरेडी ब्रैकेट में दिया हुआ है, हमको उसका करेक्ट फॉर्म एंड हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाना है. नेक्स्ट इज व्हाट डैश द फार्मर्स से. What will the farmers say when they hear about the rain forecast for this session? अब इस सेशन के बारे में जब फार्मर्स को पता चलेगा रेन फोरकास्ट की, तो वो क्या कहेंगे. तो कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया है, एक हमारा सिर्फ अनुमान है कि जो होगा वो फ्यूचर में होगा. सो यहाँ हमने सिंपल फ्यूचर से फिल किया है, दैट इज़ विल, एंड हमने उसकी फर्स्ट फॉर्म लगा दी से.
नेक्स्ट इज दे शैल हैव कंप्लीटेड द फ्लाई ओवर बाई दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल इसी समय तक ये फ्लाई ओवर कंप्लीट कर चुके होंगे। एक पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है तो हमने क्या लगा दिया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, they shall have completed. So that was the exercise related to simple future and future perfect tense. So let's see the next exercise, that is fill in the blanks with future continuous and future perfect continuous tense of the given verb. So verbs are being given in the question, आपको क्या करना है, उसको future continuous और future perfect continuous tense के साथ fill करना है। First it is written, she will be verifying the details बिफोर साइनिंग द अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट को साइन करने से पहले वो क्या कर चुकी होगी, जितनी भी डिटेल्स हैं उसका वेरिफिकेशन कर चुकी होगी, मीन्स उसके बारे में पता लगा चुकी होगी, दैट इज़ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। लेट्स सी द नेक्स्ट, हियर इट इज़ रिटन, सुखदेव विल हैव बीन टेकिंग क्लासेज इन क्लासिकल म्यूज़िक फॉर 4 years बाई 2025। अब मीन्स वो 2021 से स्टार्ट करेगा और 2025 तक जो क्लासिकल म्यूज़िक है उसमें वो कितने साल तक, 4 साल तक वो जब भी स्टार्ट करे, 2021 या 2022 से जब भी वो स्टार्ट करेगा वो 2025 तक 4 साल के लिए अपनी क्लासिकल म्यूज़िक की क्लासेस ले चुका होगा। सो हमने एक पर्टिकुलर टाइम दिया है, इसीलिए हमारा ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, फ्यूचर में स्टार्ट होगा, कुछ समय कंटिन्यू रहेगा और फ्यूचर में ही एक पर्टिकुलर दिए गए समय पर पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट इज आई शैल बी फिलिंग आउट माई वीज़ा एप्लीकेशन बाई टमोरो। अब कल मैं क्या कर रही होंगी, मैं अपनी जो वीज़ा एप्लीकेशन है उसको फिल कर रही होंगी, ठीक है। प्रेजेंट फ्यूचर कॉन्टिन्यूज हो गया ये आपका। नेक्स्ट इज बाई वेडनेसडे, बाई वेडनेसडे वी शैल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द फेस्टिविटीज़ फॉर अ मंथ। फेस्टिविटीज़ आपका फेस्टिवल का होगा, मीन्स उत्सव का जो एक माहौल है वो लगभग 1 महीने तक जो है हम उसकी तैयारी कर चुके होंगे, ठीक है। बाई वेडनेसडे यानी बुधवार तक जो भी हमारी अगले मंथ की फेस्टिविटीज़ हैं, पूरे 1 माह का जो उत्सव रहेगा उसकी हम तैयारी कर चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यहाँ हमने लगा दिया शैल हैव बीन प्रिपेयरिंग, बिकॉज यहाँ पर वी है, वी के साथ हमने यहाँ शैल लगा दिया। सो यहाँ एक पर्टिकुलर टाइम दिया है फॉर अ मंथ। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट विल बी इम्पोजिंग अ फाइन ऑन टैक्स ऑफेंडर्स दिस ईयर। सो गवर्नमेंट किसके ऊपर इम्पोज करेगी, एक जो टैक्स ऑफेंडर्स हैं, मीन्स जो टैक्स अपना समय पे भुगतान नहीं करते हैं उनके ऊपर एक फ़ाइन इम्पोज करेगी, फ़ाइन जो है वो लगाएगी। ये आपकी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया कि वो लगाएगी, लगा रही होगी, ओके। नेक्स्ट इज बाय टुमारो द लाइब्रेरियन विल हैव बीन कैंपेनिंग फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड बुक्स फॉर अ मंथ। रेस्टोरेशन मीन्स होता है उनका दोबारा से रख रखाव। जो कल है, कल तक क्या होगा, लाइब्रेरियन जो है वो एक कैंपेन अभियान चला चुका होगा रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड बुक्स, यानी किस तरीके से जो पुरानी किताबें हैं उनको रेस्टोरेशन उनका किया जा सके, उनका रख रखाव किया जा सके। I hope all the exercises are clear to everyone. If still any confusion is there, so you can ask in the Zoom meeting and you can ask on WhatsApp also. So till that, stay home, stay safe. Bye bye everyone.